Now 31 students are there. Good morning all of you. Student. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, fine. So we'll continue our data. Students. I am sharing the screen. Hello, good morning. Welcome to Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya Vasai TY BCom 5th Sem. Subject Computer System and Applications. Topic is Data Communication and Networking, Module 1. Today we have to continue with your network media that is presented by Assistant Professor Bipin P. White. Student, network media means there is a channels, cables, wired or wireless we are using. So see that now in the telephone line also we are using wired and wireless. Now at present we are using telephone, mobile. Yes or no? Yes, student. Wired telephone is there. BSNL telephone. Yes, Is sir. wired. Yes, sir. And without wires, wireless, we can see the mobile. So that means that is a media network. That is also media. So telecommunication model channel are the part of a telecommunication network that connects the message source with the message receiver. So we have the first of all trunk call. Before that, in the military system, they are using walkie-talkie. So they are sender and receiver message. They one person talk that time just he press the button and say the receiving call is there. So yes, just like alpha, beta, and military, it is going on. Sending and receiving, source and destination. So there are two type of message: source message and receiver message. Is it right? Yes, student. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Don't sleep. Okay, fine. Message source are like that. When we are sending the data, so we can say that we are delivering the message. That means we are source message. Those who are receiving, that is called receiver message. So they are telecommunication system like that now at present, two-way communication. Okay, before that we are using walkie-talkie is a one-way communication. Now they are two-way communication. At present, both can talk, both can send, both can receive. That is your mobile and other devices we are using over here. So both can talk easily, both can receive easily. That is media. That is called media. So transmission medium is the one of the path who transfer your data, information, message from one device to another device. That is network media. So it may be wired, that is guided or bounded, wireless, unguided or unbounded. So now two things we have to see over there: wired and wireless. So first of all, wired media. What is wired media? So wired transmission media uses cabling system. Yes. Hello, students. आवाज आ रही है? Hello. Sir. Sir, आ रहा है. Yes, sir. आ रही. Wire transmission media uses a cabling system. Cables, अपने twisted pair cable होते हैं ना? Just cable TV use the black cable, that is coaxial cable. In अपने LAN में जो grey color and blue color cables are there, that is twisted pair cable. And then last one, fiber. At present we are using fiber optical. It is a lightweight. Okay, it is also black color, just like your cable TV. There are now fiber optical cable, and it transfers the light pulses. So that's why lights emitting it is there. Okay, so we have to see all that thing briefly. First of all, twisted pair cable. It is a simple, oldest and low price cable media. Simple. Okay, have you seen the twisted pair cable? देखा आपने? ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ. This is the cable. Have you seen? 17. Yes, ये केबल देखा आपने? No. LAN cable, नहीं LAN देखा. cable, blue color, grey color, port, that is a cable, LAN cable. आपने देखा है कि नहीं? ये ऐसा वाला. आपने कंप्यूटर लैब में आप गए हो? कंप्यूटर लैब में हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड जो केबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल. So this is twisted pair cable means what?
यहाँ पे हर एक को कलर कोड्स होते हैं, ओके। तो वो कलर कोड को वो कलर्स है ना, व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ब्राउन, so these are pairs, so that's why this is a pair मतलब वो पेयर केबल है, एक प्लस माइनस करके उन्होंने पेयर केबल बनाया, and it is joined with that port RJ45 port, it is there, this is the port, and we are connected to the where in the PC, and one another node connect to the switch. There are two nodes, see that na, two ports are there, cable joint, it is there, so there are two port, यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए हम लोग ट्रांसफर करने के लिए डेटा फिजिकली ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, गॉट इट, क्लियर, सो कंटिन्यू, ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, टिपिकली अबाउट 1 mm थिक, एक 1 मिलीमीटर का थिकनेस होता है उसका, सो द वायर, पहले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे सी दैट नाउ, ये दिख रहा है आपको ट्विस्टेड पेयर, व्हाई दे आर कॉलिंग ट्विस्टेड, ये देखो इस तरह ट्विस्ट होता है, ओके, और ये ऐसे कलर कोड्स होते हैं, ब्लू व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ब्राउन व्हाइट, देखो यहाँ पे भी फिजिकली डायरेक्टली पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर दिखाया हुआ है, एंड वहां से एक एक सिंगल कॉपर वायर बाहर निकलते, तो यहाँ 4 पेयर्स हैं, तो हाउ मेनी केबल्स आर देयर, 8 केबल्स आर जॉइनिंग, व्हाट इट, पिक्चर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, यस स्टूडेंट, reply. Yes, sir. Yeah. Okay. So that is twisted. So that's why twisted we consider two insulated copper wires. Two insulated copper wire. So यहाँ पे two insulated copper wire, and the wire is twisted around each other in a continuous spiral or in a helical form. आपको हेलिकल फॉर्म में दिखाई देगी, मतलब उसके ऊपर जो एक कंटिन्यूस सीरीज स्पाइरल होती है, स्पाइरल मतलब क्या समझ में आया, एक दूसरे से ट्विस्ट की हुई स्पाइरल की जैसे होती है, एंड इट जस्ट लाइक अ डीएनए मोलेक्यूल, आप डीएनए देखते हो, डीएनए अपना बॉडी का डीएनए कैसे रहता है वैसे दिखाई दे, देन purpose of twisted the wires is to reduce electrical interference or noise from similar player close by, मतलब अगर आपका LAN सिमिलर कट किया हुआ वायर उससे ज्वाइन होगा तो क्या होगा, उसके नॉइस इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस हो गया और सिग्नल्स वीक बनेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, नॉइस, आवाज ज्यादा आया या वायर्स वो कनेक्टिविटी हुई तो आपका, जैसे देखो मोबाइल पे बात करते हुए बहुत बाहर से आवाज आए तो आपको सुनाई देता है, सुनाई देता है क्या, नहीं ना, so that means there are electrical signals, इलेक्ट्रिकली क्या हो रहा है, सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी दो कॉपर वायर जो कट किया हुआ वायर है अगर एक साथ ज्वाइंट हुए तो आपका क्या होगा, वो आपको इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होगा, सिग्नल वीक मिलेंगे। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर इज अ टेलीफोन, आप टेलीफोन सिस्टम में भी ये RJ11 जो कनेक्टर होता है वो RJ11 का होता है, BSNL के टेलीफोन नॉर्मल जो टेलीफोन होते हैं BSNL के वो यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, दे आर यूजिंग ट्विस्टेड पेयर, और अभी हम लोग यूज कर रहे हैं RJ45 कनेक्टर से ट्विस्टेड पेयर केबल, वो लैन के लिए यूज कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, गॉट इट, क्लियर स्टूडेंट, Yes, sir. okay fine, so most common applied twisted pair is the telephone system. The pair cable is the type of wiring in which two conductor of a single circuit are twisted together. एक दो सिंगल सर्किट कंडक्टर आपके रहते हैं वो ट्विस्टेड रहते हैं और उससे प्रपोजिंग कैंसलिंग आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं आता है, वो वायर हिलती नहीं है, वायर से अगर आवाज भी आया या अगर आपने वायर भी हिलाया तो वो हिलेगी नहीं, बिकॉज इट इज ट्विस्टेड, so it can run several kilometer without amplification, कुछ भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, आप 1 किलोमीटर एरिया तक लैंड के लिए ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हो, वेरी सिंपलेस्ट, ओल्डेस्ट एंड लो प्राइस केबल मेड, व्हाट इट एडवांटेज है, चीप, इजी टू वर्क, डिसएडवांटेज है लो डेटा रेट, आपका डेटा रेट मतलब डेटा बैंडविड्थ, स्पीड, इसका स्पीड है आपका 10 Mbps, कितना 10, तो 100 Mbps तक हम लोग जा सकते हैं, बट नॉर्मली 1 किलोमीटर एरिया में उसका स्पीड कम हो जाता है, ओके, इन 1 किलोमीटर एरिया में, तो देयर आर 100 Mbps इन द लैंड वी आर यूजिंग, बट यहाँ पे उसका रेट बताया हुआ है इन द 1 किलोमीटर एरिया में 10 Mbps का स्पीड होता है, गॉट इट, क्लियर, एंड इट इज शॉर्ट रेंज, आप ज्यादा 1 किलोमीटर एरिया से ज्यादा जाओगे तो आपको वो कनेक्टिविटी वीकनेस सिग्नल ज्यादा आ जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज, so these are the
ट्विस्टेड पेयर केबल, ये वाला जो केबल है उसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। ये फिजिकली वायर्ड मीडिया है जो इंडिविजुअली लैन के लिए यूज किया जाता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। गॉट इट? यस स्टूडेंट। चिप क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि आप इजीली 40 रुपए में भी केबल आती है, आप डायरेक्ट लैपटॉप और अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन गेट द नेटवर्क सिस्टम। गॉट इट? एंड वी कैन शेयर द डेटा फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। गॉट इट? यस स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. चलो नाउ टाइप्स, दो टाइप्स के ट्विस्टेड पेयर केबल आते हैं, एक अनशील्डेड और एक शील्डेड। अनशील्डेड, शील्डेड मतलब आपको पता चल गया होगा, कट, अनशील्डेड मतलब कट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनशील्डेड का मतलब यूटीपी। सो यूटीपी, मोस्टली यूटीपी इज मोस्ट कॉमन टाइप वी आर यूजिंग इन द टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। इट कंसिस्ट ऑफ टू copper conductor each having their own insulating material that is plastic। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है? यूटीपी, intertwined with each other to cancel induced current and all that। उसके ऊपर कवर होता है, वायर्स को इंडिविजुअल प्लास्टिक से कवर किया जाता है, कलर दिया हुआ है व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। अरे आप टेलीफोन लाइन में बूथ में भी जाते होंगे ना, तो उसमें देखो बाजू में जो डीपी होता है रेड कलर का, उधर भी टेलीफोन वाला अगर रिपेयरिंग के लिए आता है तो कितने सारे कट किए हुए वायर्स रहते हैं, वो कलर कोड होते हैं एंड इट इज यूटीपी, अनशील्डेड। ओके, अनशील्डेड। Reason of placing twist is the pair of wires is to minimize the vulnerability। उसका vulnerability कम करने के लिए या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक नॉइज का आपको कम रेफरेंस वीकनेस सिग्नल नहीं होने चाहिए इसके। So its frequency range is suitable for data transmission as well as voice transfer। ये दोनों के लिए काम करता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी और बीएसएनएल के जरा वेव सिग्नल्स के लिए भी काम आता है। So their speed 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज का स्पीड दिया हुआ है। ओके, 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। तो दैट इज गिवन केबल, ये दिया हुआ है ट्विस्टेड। ये देखो दूसरा शील्डेड, अनशील्डेड एंड शील्डेड। अभी देखो शील्डेड में देखो क्या किया हुआ है, क्या किया है उन्होंने? कवर्ड है, प्लास्टिक कवर से ये कवर्ड है और उसके ऊपर कवर्ड है, तो दैट इज शील्डेड। ओके, एडवांटेजेस ऑफ यूटीपी आर इट्स लो कॉस्ट। यूटीपी में क्या होता है, ये लो कॉस्ट है, इट इज इजी टू इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, इट इज बेसिकली यूज इन लैन में यूज होता है। ओके ना, उसकी कैटेगरी भी दी हुई है अलग अलग। यो इस कैटेगरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, यहाँ पे इस एसोसिएशन में उन्होंने 5 कैटेगरी ऑफ यूटीपी दिया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, 5 अलग अलग जगह पे यूज है। जैसे कैटेगरी 1 वी आर यूजिंग इन टेलीफोन लाइन, इट इज एफिशिएंट ओनली फॉर लो स्पीड डेटा लाइन। इसमें लो स्पीड में काम हो सकता है क्योंकि वॉइस सिग्नल्स आर देयर, वेव सिग्नल्स आर देयर, वी कैन इजीली ट्रांसफर। आवाज के सिग्नल्स होते हैं, वेव सिग्नल मतलब आवाज के सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। कैटेगरी 2, it is used for voice transmission but it is equally preferred for data transmission of up to 4 mbps। आपका 4 mbps का स्पीड होता है कैटेगरी 2 में। तो उन्होंने बताया कि ये वॉइस ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा कैटेगरी प्रेफरेबल कभी कभी होता है, यूज करते हैं वॉकी टॉकी एंड ऑल दैट। फिर कैटेगरी 3, दिस इज यूज ट्रांसमिशन बिकॉज इट प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ। इसमें हाई बैंडविड्थ होता है because high rate data transfer rates होते हैं, they are used for long distance and high speed के लिए यूज करते हैं। it is a standard cable for most telephone। कैटेगरी 3 यही आजकल आपके टेलीफोन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी 4, इट प्रोवाइड्स मच हायर देन दिस। तो यहाँ स्पीड देखो ना 16 mbps, तो इससे ज्यादा 10 mbps, 16 mbps मोस्टली यूज इन 10 mbps कैटेगरी 4, बट उससे ज्यादा हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं वो है कैटेगरी 5 फॉर लैन। मैक्सिमम डेटा स्पीड 100, मैंने बताया था आपका स्पीड कितना है, 100 mbps का लैन का स्पीड है एंड इट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड में जनरली RJ45। दिस इज द कनेक्टर, ये देखो कनेक्टर है, इसमें एक इंडिविजुअल केबल चल जाती है एंड देन इट इज कनेक्टेड टू योर पीसी एंड स्विच। दैट इज कैटेगरी 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. अभी शील्डेड मैंने बताया था कि शील्डेड में इस तरह रहता है, कोटेड होता है। तो शील्डेड में देखो आपको यहाँ पे वायर्स कट होने के बाद और एक प्लास्टिक कोटेड आ जाता है, मेटल शील्ड आ जाती है और एक प्लास्टिक कवर से उसको कवर करके ऐसे वायर्स निकलते हैं। तो दैट इज शील्डेड और ये मोस्टली टीवी नेटवर्किंग या इसके लिए यूज करते हैं।
सो टीवी का नेटवर्क आता है ना, टीवी से हम लोग इससे केबल वाले से जब ये डायरेक्टली एक क्या बोलते हैं उसका डिवाइस रहता है केबल का सेट टॉप बॉक्स, उससे लेंगे तो उसके लिए वो लोग शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है. इट इज नॉट यूटीबी, इट इज अ शील्डेड. तो एसटीबी ये रॉन्ग दिया है, ये एसटीबी. So this each pair of insulated conductor is a in case in metal shield to prevent cross talk. उससे cross talk नहीं होगा क्योंकि ये metal से already covered है. Okay. So quality aspect of shielded मतलब समझ में cross talk का मतलब बता दो. कभी कभी देखो पहले कैसे wrong numbers आते थे, cross connection होता था, या आवाज आती थी, दूसरे का भी आवाज टेलीफोन में आता था दूसरे का, तो that is what cross talk. तो ये आते हैं तो डेटा ट्रांसमिट रेट वीकनेस हो जाते हैं, तो इसलिए ये शील्डेड यूज करते हैं. तो क्वालिटी स्पीड ऑफ शील्डेड इज द सेम एज द अनशील्डेड, बट द शील्ड मस्ट बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड अर्थिंग से कनेक्टेड हो. व्हाट इट. सो यहाँ पे दिया है देखो, आउटर जैकेट, ओवरऑल शील्ड, पेयर शील्ड एंड ट्विस्टेड पेयर, ईच कलर शेड दिखाया हुआ है. एसटीपी कनेक्टर होता है, उससे वो कनेक्ट करके डायरेक्टली यूएसबी तरह जॉइंट होता है. तो देयर आर स्पीड गिवन 10 to 100 Mbps. कॉस्ट पर दिया हुआ है मॉडरेटली एक्सपेंसिव. मीडिया एंड कनेक्टर्स है मीडिया टू लार्ज एंड मीडिया. मैक्सिमम केबल लेंथ है 100 मीटर. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये यूज करते हैं. मैंने बताया आपको शॉर्ट डिस्टेंस मतलब टीवी से सेट टॉप बॉक्स तक, ठीक है. ज्यादा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम. जैसे आपका देखो डिश टीवी से केबल आया हुआ है, डायरेक्टली सेट टॉप बॉक्स में चला जाता है, सेट टॉप बॉक्स से आप टीवी देखते हो, तो उस तरह के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल ये इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हैं. दैट इज अ एसटी. Got it? Clear, student? Yes, student? Yes. Hello? Yes, sir. Okay. Now, continue with the next. Twisted pair cable के uses उन्होंने दिए कि shielded twister uses the same connector as a UTP but are more expensive than UTP. लेकिन STP थोड़ा expensive है. It is used for both analog digital, दोनों. Analog मतलब wave signal और digital मतलब on off signal. So that is a not digital. On off it is a electric signal. इसको digital बोलते हैं. So it is said to be balanced transmission media. ठीक है. Now second media है हमारे लिए, वो है कोएक्साइल केबल. क्या है? कोएक्साइल. तो कोएक्साइल आपने टीवी का केबल देखा है? टीवी का केबल, टीवी केबल टीवी वीसीपीएल वाले का केबल टीवी से आया हुआ केबल देखा है? मीडिया वो ब्लैक कलर का होता है. व्हेन यू कट इट उसका मैश दिखाई देते हैं, मैश शील्ड होते हैं, ऐसे एल्यूमिनियम के मैशेस दिखाई देते हैं. फिर उसको कट करने के बाद एक व्हाइट कलर का क्लोरिंग इंसुलेशन दिखाई देता है, और फिर एक कंडक्टिंग कॉपर वायर, एक ही सिंगल कॉपर वायर, उसमें सारे 8 कॉपर वायर नहीं होते, एक सिंगल कॉपर. फिर वो कॉपर कनेक्टर से कनेक्ट होता है और आप वो कनेक्टर केबल को सॉरी टीवी को भी अटैच कर सकते हो या आपके सेट टॉप बॉक्स को भी अटैच कर सकते हो. दैट इज द केबल. इट इज कोएक्साइल केबल. देखो यहाँ पे आउटर इंसुलेशन, एक केबल जो कट ना हो जाए इसके लिए ये वायर्ड है. फिर उसके बाद अंदर कट होने के बाद कॉपर मेश आती है, उसको कट होने के बाद एक व्हाइट कलर का क्लाइडिंग इंसुलेशन होता है, और उसके बाद एक कंडक्टिंग कॉपर वायर, एक सिंगल कॉपर वायर, इसको कोएक्साइल केबल बोलते हैं. व्हाट इज. So what is that? This cable has a 2 conductor. One is a single wire in center of the cable, and other is wire mesh shield that surround the first wire. क्या बताया? एक सिंगल कॉपर वायर है सेंटर में, और दूसरा वायर मेश जो अर्थिंग का काम वगैरह करती है, that is a surround the first wire. So with an insulator between it. So that is coaxial. This cable is not immune to the electric. ये केबल आपका ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वीक नहीं करता है. डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. ये भी डेटा करंट से ही ट्रांसफर होता है. कैन सपोर्ट अप टू 10 Mbps. इसका स्पीड 10 Mbps है. दिस केबल वे आर यूज फॉर लैंड. ये लैंड के लिए यूज करते हैं. इट इज यूजी टू इंस्टॉल एंड लेस एक्सपेंसिव. इट हैज अ 2 टाइप्स. इसमें भी 2 टाइप है. इजी इंस्टॉलेशन है, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड. आगे बेस बैंड और ब्रॉडबैंड के बारे में बताऊंगा तो एक क्लियर बात है. बेस बैंड इंटरनेट वीसीपीएल डिजिटल ट्रांसमिशन. ब्रॉडबैंड इंटरनेट दैट इज एनालॉग मतलब वेव सिग्नल. हवा के सिग्नल, वेव सिग्नल जो होते हैं वो ब्रॉडबैंड है. जैसे वाईफाई वगैरह हवा के सिग्नल, उसको ब्रॉडबैंड. लेकिन जब बेसबैंड बोलेंगे तो डिजिटल सिग्नल भी है, उसको ऑन ऑफ किया जाता है, उसको हम लोग बेसबैंड. व्हाट इट. क्लियर? यस स्टूडेंट. हेलो Sir. So
So Yes. Yes, sir. there are most common means of data transmission over short distance. लेकिन ये short distance के लिए यूज किया जाता है. आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जा सकते हो, लेकिन आफ्टर 10 किलोमीटर यू कैन नॉट ज्वाइन, बिकॉज आपको मालूम है कि फ्यू एरिया तो वो लोग करते हैं, फिर दे आर यूजिंग रिपीटर, दे क्रिएट ब्रिजेस एंड आफ्टर दैट कनेक्ट अगेन, फिर वापस चालू हो जाता है 10 किलोमीटर, ऐसे करके कनेक्ट करते हैं. लेकिन आप एक सिटी से दूसरे सिटी में डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो हम लोग को मालूम है इंटरनेट बेस्ड मीडिया, वायरलेस इज बेस्ट मीडिया, टावर इज देयर, सैटेलाइट इज देयर, वही बेस्ट मीडिया है वायरलेस. लेकिन ये कोएक्सियल लगा, so they are cheap to make, cheap to install, easy to modify, good bandwidth, इसका स्पीड अच्छा होता है, bandwidth मतलब स्पीड, and great channel capacity, great channel capacity. Got it? Now next, Yes, sir. disadvantages. Signals entering the cable can cause unwanted noise and picture ghosting, making it useless. मतलब जो आप सिग्नल्स एंटरिंग करते हो इसके अंदर, सो इट कैन कॉज अनवांटेड नॉइज. अगर आपके अनवांटेड नॉइज, मैंने पहले बताया था आपको क्रॉस टॉक, ओके, कभी कभी पिक्चर गोस्टिंग होते हैं, मतलब पिक्चर स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, तो मे बी दैट टाइम इट इज यूजलेस, कभी कभी यूजलेस हो जाता है, बीच बीच में कट हो जाता है. ऐसे वायर हिलती है ना, वायर हिलने के बाद अनवांटेड नॉइज आता है, तभी वो सिग्नल वीक होते हैं, केबल हिला एंड ऑल दैट. ओके, सो कंटिन्यूअस करंट फ्लो इवन इफ continuous current flow, even if small, along the imperfect shield of a coaxial cable can cause visible and audible interference. यहाँ पे क्या बताया है कि continuous current flow, इसके अंदर जितना continuous current flow हो रहा है, तो ये small और along the imperfect shield, तो यहाँ पे visible दिखाई देता है, audible होता है. लेकिन अगर continuous flow नहीं होता है तो वो unaudible. ये more expensive also. Okay, more expensive. It is not supported some network standard. आपके सिंपल पीसी में कनेक्ट नहीं हो सकता है डायरेक्ट, इसके लिए अलग से लैंड नेटवर्क, लैंड कार्ड लेना पड़ता है. It also has a high attenuation, of course. Weakness of the signal, same thing. It has a copper wire. Copper wire आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी कॉपर वायर से इंटरफेरेंस होता है और सिग्नल वीक होते हैं. Okay, they have to use in a repeater if they want to extend the. That is the disadvantage given. Now third one, cable media is there, fiber optic cable. ये लाइट वेट है. अभी ये डिफरेंट है, इसके अंदर कॉपर वायर ही नहीं होता है, इसके अंदर कॉपर वायर नहीं. These are composed of a glass or plastic inner core surrounded by cladding, all encased in an outside jacket. मतलब ये देखो यहाँ पे केबल दिया हुआ है, देखो शो वाला, यहाँ पे प्लास्टिक जैकेट है और एक क्लैडिंग होता है व्हाइट कलर का, और ये फाइबर कोर होता है. इट इज नॉट अ कॉपर वायर, ये फाइबर कोर होता है. इससे लाइट ट्रांसफर होती है, लाइट. और लाइट ट्रांसफर भी कैसे होती है, देखो, जस्ट लाइक दैट, सेंडर रिफ्लेक्टिंग, सेंडर रिफ्लेक्टिंग, सेंडर रिफ्लेक्टिंग, लाइक दैट वी आर ट्रांसफरिंग. तो ये क्लैडिंग में ये पूरा लाइट कोर आपका चला जा रहा है और रिसीवर को मिल रहा है. So they are showing the reflection also, light reflection कैसे होता है वो है. ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से देखो लेस रिफरेंस, यहाँ पे मोर, मतलब यहाँ से ऐसे होगा तो जल्दी फास्टर जा सकता है, इसलिए उन्होंने कैसे यूज किया है, लाइट पल्स ऐसे क्रॉस वे. देखो यहाँ से गया, 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 दैट्स लाइक दैट दे आर सेइंग इट. गॉट इट? क्लियर? सो दैट इज योर फाइबर ऑप्टिकल केबल. तो एक्सप्लेन करता हूँ. फाइबर ऑप्टिकल केबल कैरी डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट. क्या होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल? डेटा सिग्नल किससे ट्रांसफर करते हैं? लाइट से. लाइट पल्सेस ट्रांसफर होते हैं. They are not copper wire नहीं है, वहाँ लाइट पल्सेस से डेटा सिग्नल होते हैं. So their signal is propagated along the inner core by reflection. ऐसे रिफ्लेक्ट होती है लाइट. जैसे आप लोग ने कभी लेजर यूज किया बचपन में, वो लेजर लाइट थी, यहाँ वहाँ मारते हो, देखते हो ना लेजर लाइट. देखो इन स्ट्रेट वे चली जाती है ना, स्ट्रेट वे. लेकिन अगर उसको फोर रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी. ओके, रिफ्लेक्ट होके मतलब वो टॉस करके जाएगी. सेम लाइक दैट यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, वो कोर के अंदर लाइट चली जाती है और रिफ्लेक्ट होके दूसरे रिसीवर को मिलती है. सो और ऑल्सो फाइबर ऑप्टिकल केबल भी हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं. एक लेजर लाइट लेते हैं, वो कोर में डालते हैं, अगर लाइट वहां से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब सिग्नल आर पासिंग फास्ट एंड डायरेक्टली, इसका स्पीड भी ज्यादा होता है. लाइट चेक करने के फाइबर ऑप्टिकल हम लोग फिजिकली जब चेक करते हैं ना, रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं. डायरेक्ट एक लेजर लाइट या कोर में यूज करते हैं, डायरेक्ट दूसरे जगह से हम लोग को वो कोर लाइट दिखाई देती है. That's why we say that कि उसके अंदर कोई ब्रेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं. Understood? Clear? Okay. So
Relatively new transmission media used by telephone in the place of long distance trunk line. जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रंक लाइन के लिए यूज करना है तो आजकल फाइबर, आज तो आप देखते हो रिलायंस या बहुत सारे जन ने, वो कंपनी ने, वोडाफोन ने, मेनी कंपनीज ने वो क्या किए, नीचे से केबल डाला हुआ है, दैट इज फाइबर ऑप्टिकल केबल. ओके, आजकल वो यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग फॉर मेनी पर्पस, नॉट ओनली फॉर द नेटवर्क, दे आर यूजिंग फॉर टेलीफोन लाइन, trunk line, long distance line, Wi-Fi tower, and many things. Okay, so also used by private companies in implementing local data communication network. ये भी private companies में use होता है. बड़े बड़े, इसलिए मैंने बोला रिलायंस का नाम लिया, वोडाफोन नाम लिया, या टावर्स आर देयर, वहाँ पे बहुत सारे टावर्स के ऊपर वो कनेक्टिविटी करने के लिए ये फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं. Required light source with the injection laser diode. मैंने बताया था ILD, injection laser diode, और light emitting diode. Okay, so that is LED. LED आपका आजकल का टीवी भी LED सिस्टम का है. LED मतलब एक जस्ट बल्ब, छोटा सा बल्ब होता है, लाइट एमिटिंग डायोड. आप पिक्सल्स में देखोगे पहले लिक्विड यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, अभी आज LED डिस्प्ले. तो LED में एक एक लाइट ऐसे पल्स में आपको रिजोल्यूशन देती, एंड इट फास्टर देन अदर, इसलिए वो लाइट एमिटिंग यूज करते हैं. पर ऑलरेडी मैंने बताया कैसे प्लास्टिक जैकेट होता है, फिर ग्लास क्लैड होता है, और ये कोर होता है. इट इज नॉट अ कॉपर वायर, ये फाइबर कोर है जिससे लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट होती है. ओके, सेंडिंग एंड रिसीविंग. सो दे शो दैट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्ट. ये रिफ्रैक्शन क्यों बताया हुआ है कि ये लेस डेंस है, ये लेस डेंस है, लेकिन ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो डायरेक्टली आपको लाइट पल्सेस आपको रिसीवर को फास्टली, स्पीडली, क्विकली, विद इन सेकेंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो लाइट आपको सिग्नल्स मिलना चालू होगा. दैट्स व्हाई इट इज अ लार्जर बैंडविड्थ. सबसे ज्यादा फास्टर बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिकल केबल का ही है. गॉट इट? क्लियर? सो हायर ट्रांसमिशन रेट 100 Mbps, सपोर्ट्स वॉइस वीडियो डेटा, ग्रेटर कैपेसिटी. देखो बैंडविड्थ कितना है, देखो 2 Gbps, किधर 100 Mbps और किधर 2 Gbps. देखो 2 गीगाबिट पर सेकेंड ट्रांसफर कर सकते हैं. स्मॉलर साइज, लाइटर वेट. इसकी कोएक्सियल केबल में कॉपर वायर है, ओके, उसकी वजह से वो हेवी वेट हो जाता है. ये लाइटर वेट है, ओके, और इसकी साइजिंग भी, केबल बड़ी नहीं होती, बहुत स्मॉल साइज में. देन लोअर अटेन्यूएशन, इसके सिग्नल वीक ही नहीं होते. क्यों? बिकॉज इट हैज, उसके अंदर कॉपर वायर ही नहीं है, तो लोअर अटेन्यूएशन, सिग्नल वीक होने का चांस ही नहीं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है ही नहीं. So immunity to environmental electrical interference, electrical interference. Highly secure है. It is almost impossible to tap into fiber cable. Of course उसके अंदर टैप करना बहुत मुश्किल है. टैप मतलब कट करके दूसरा कनेक्टिविटी लगाना मुश्किल है. बाकी इसमें कैसे हम लोगों ने कट करके कनेक्टर लगाया है, तो हम लोग को केबल वगैरह, नेटवर्क वगैरह चालू हो सकता है. बट हियर इन अ फाइबर ऑप्टिकल, वहां पे कट करके कोर ब्रेक होगा, और कोर ब्रेक हो गया तो वी कैन नॉट कनेक्ट टू द अदर्स. गॉट इट? समझ में आया? So it is safely, easily installation, more compact, lighter than copper wire. So that is your fiber optical cable. Disadvantage है expensive over short distance, and it is unidirectional. It is not in bidirectional. Unidirectional, एक single, एक जगह से दूसरे जगह unidirection में जाए. It requires highly skilled installation, और उसको install करने के लिए engineer लगेंगे. Not only हम लोग कोई भी install नहीं कर सकते. Engineers know that how to cut, how to join, which are the devices we have to join and all that. Additional अगर हम लोग को नोड ऐड करने हैं, जैसे और एक नेटवर्क सिस्टम में लाना है, तो इट इज डिफिकल्ट. वी हैव टू मेंटेन देयर वाईफाई राउटर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कनेक्ट. मेंटेनेंस रिपेयरिंग कॉस्ट इज हाई, इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है. Got it? Yes student, wired media is clear. Which are the wired media? Twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optical cable. That is your wired media. Clear? Yes student? Hello? Yes, sir. Okay, now last point is there, wireless transmission media. Infrared, radio waves, satellite, these are all the wireless. of course na, wireless है, Bluetooth wireless है, Wi-Fi wireless है. So infrared मतलब सिंपल बता था आपने. टीवी और रिमोट कैसे चलता है, आप चैनल लगाते हो, डायरेक्ट वायरलेस होता है. So this type of wireless transmission media that send signals using infrared light waves. रिमोट में आपके इंफ्रारेड लाइट होते हैं, वो जाते हैं सिग्नल्स टीवी को, टीवी में वो सेंसर दिया हुआ है,
उससे वो आपके चैनल्स वगैरह चेंज कर नेटवर्क पार्ट चालू होता है. So that is to communicate each other. We are using infrared devices. बस within 5 मीटर 15 फीट, ज्यादा नहीं. ब्लूटूथ, इंफ्रारेड वगैरह यूज करते हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स है. गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट इंफ्रारेड वेव्स. सेकंड रेडियो वेव्स. आपने सुना होगा कि रेडियो वेव्स में, ब्लूटूथ में या अदरवाइज रेडियो वेव्स में 33 फीट तक 10 मीटर तक हम लोग सिग्नल पास आउट कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट. तो रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू ब्लूटूथ डिवाइस, दो ब्लूटूथ डिवाइस, एक मोबाइल दूसरा मोबाइल. तो आपको सिग्नल पास करना है और डेटा ट्रांसफर करना है. वी आर यूजिंग व्हाट, आपके शेयर इट और या दूसरे भी आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफर करते थे टू दी ब्लूटूथ डिवाइस में. तो दैट डेटा ट्रांसफर विल डिवाइस अ रेट ऑफ 1 Mbps. उसका स्पीड है 1 Mbps एंड दैट टू कम्युनिकेट योर ब्लूटूथ ऑप्शन विद इन 10 मीटर 33 फीट तक कर सकते रेडियो. दैट्स उसका स्टैंडर्ड IEEE, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, 802.15 स्टैंडर्ड दिया हुआ है. ये स्टैंडर्ड से काम करते हैं. नेक्स्ट वाईफाई, ऑफ कोर्स वायरलेस फिडेलिटी. तो वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा तो याद कर लो, वायरलेस फिडेलिटी. तो वाईफाई दैट डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन डिवाइस एट अ रेट ऑफ 11 to 54 Mbps. इतना स्पीड है वाईफाई. यू कैन यूज इट. उतने सारे डिवाइस अलग अलग आते हैं. तो नाउ इट 150 वाईफाई का भी आता है, 300 Mbps का आता है. So to communicate Wi-Fi device often must be within about 30 meters, 30 मीटर तक, यानी 100 फीट तक आप लोग Wi-Fi fidelity ट्रांसमिशन मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं. और लास्ट वन सैटेलाइट. ऑफ कोर्स वेयर इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अबाउट द अर्थ 22,000 किलोमीटर आई गो. सो वहां से सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं. तो दैट इज सैटेलाइट इज अ स्पेस स्टेशन दैट रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम एन अर्थ बेस्ड स्टेशन एंड इट एम्प्लीफाइज the signal and broadcast the signal back over a wide area. That's a WAN. इंटरनेट के लिए क्या यूज होता है? सैटेलाइट के थ्रू डिश में सिग्नल्स आते हैं and that signal we are passing to the physical network. So to any number of earth-based स्टेशन में जाते हैं. तो आपने देखा होता है, आपको लगता है आपका मोबाइल नेटवर्क कहाँ से मिलता है? तो सैटेलाइट के थ्रू टावर में आता है और टावर की कैपेसिटी रडार के हिसाब से आपके मोबाइल में आता है. Got it? Clear about that? Yes, student? Yes, sir. So now my part it is over. आपका 5 मिनट है. आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट टाइम वी हैव टू सी द राउटर स्विच एंड ऑल दैट. तो मुझे सारे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस भी देखना है. 40 स्टूडेंट्स थे, अभी 39 हुए. सो जिस स्टूडेंट्स को कुछ डाउट रहेगा तो इंडिविजुअली आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट. यस, कम ऑन, 5 minutes remain. 5 to 6 minutes remain. You can clear your doubt. Yes. सर नोट्स क्या होता है? Notes, individual computer, printer, it is one node. मतलब नोड मतलब एक Okay. PCB हो गया तो एक नोड हो गया. एक प्रिंटर भी एक नोड हो गया. Those who are coming in the network. नेटवर्क में जो करेंगे, जैसे आपका मोबाइल, that is also one node. Okay? Okay. Thank you, sir. Next. Hello. You can clear your doubt, please. जो भी है, अभी 4 मिनट बाकी है. Please clear your doubt. Have you understood all things? आपको सब समझ में आ गया? इतने सारे, because this is theory part. Yes, sir. You are getting bored, I know, but of course अभी ऑनलाइन में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको इंटरेक्टिंग थोड़ा सा करना है. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आ रहा है सर. तो ये सुनना ही है. अभी आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप यू कैन प्रेफर दैट टेक्स्ट बुक, नोट्स वहाँ से ही बना लो. लेकिन ऑनलाइन में मैं पीपीटी भेजता हूँ, पीपीटी से भी रीड करोगे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, ये टॉपिक में आपको 15 मार्क्स का क्या है, सॉरी 11 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 15 मार्क्स का थ्योरी है. तो 11 मार्क्स ऑब्जेक्टिव इसी टॉपिक में से मिलेंगे पूरे 6 and 5 एंड ऑप्शन भी होता है. तो आप जब रीड करोगे प्रॉपरली तो आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा. अंडरस्टूड? एक टाइम हम लोग असाइनमेंट लेने वाले हैं. कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट होगा तो मैं असाइनमेंट दूंगा और आपसे देखेंगे आपका ऑब्जेक्टिव कितना आता है. ठीक है?
चलेगा? यस यस, आपको असाइनमेंट एक गूगल फॉर्म में भेज दूंगा, तो आप चेक करो असाइनमेंट आ गया है कि नहीं, चेक करेंगे, ठीक है? Okay, sir. या any doubt please clear. Yes, sir. Minutes remain. नो सर, नो डाउट। तो होगा तो पूछो, कोई कोई लेट ज्वाइन होता है, कोई पॉइंट चले जाते हैं। मेरा सिखाया हुआ समझ में आता है ना? किसी को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम्स? नो सर, क्लियर है, सब आता है बराबर। क्योंकि मैं क्यों हिंदी, आपको पता होगा कि अगर मैं डायरेक्टली सारा इंग्लिश में बोलूंगा ना, इट गोइंग अप, क्योंकि आपके कुछ डिफिकल्टी कंप्यूटर कुछ नहीं समझेगा। में ही बताने पड़ते हैं और फिजिकली एक्चुअल प्रैक्टिकल में दिखाने पड़ते हैं। अभी अगर आप ज्वाइन होते तो मैं सारी चीजें फिजिकली आपको बता देता था, ट्विस्टेड पेयर टेबल जैसे दिखाया, वैसे राउटर आपको पता होगा, स्विच या अदर ब्रिज, ये मेरे पास पड़े हुए, तो मैं फिजिकली भी आपको बता देता हूँ। Any doubt? Clear all of you? Can I stop? यस सर। Yes, sir. Sir. Okay. Thank you, students. Okay. Thank you, sir. I want the attendance. Listen about that. आप जो प्रेजेंट है ना, मैं एक शीट में आपको भेज देता हूँ कि जो प्रेजेंट है, मैं एक प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ अभी और उसको स्टोर कर रहा हूँ, और जो प्रेजेंट है उसके मैं नाम लिख रहा हूँ। तो अगर बाई चांस किसी का नाम नहीं आया प्रेजेंट में, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स थे, अभी देखो 38 हो गए, तो 2 स्टूडेंट किधर गए, मुझे वो अटेंडेंस देनी है। अभी सर ने बोला अटेंडेंस देने के लिए, तो मैं जस्ट वो प्रिंट स्क्रीन करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अटेंडेंस पता चले। प्रिंट स्क्रीन और एक लेने दो, वेट, सेकंड पेज। ओके, गॉट इट। अभी ये आप लोग नेक्स्ट टाइम याद रखो कि जो लोग मोबाइल का नाम लिख रहे हो, वो मोबाइल का नाम मत लिखो, आपका नाम लिखो, ताकि मुझे अटेंडेंस लेने के लिए इजी हो जाए। गॉट इट? Yes. तो मैं नाम लेके वेट समझ जाऊंगा, ये नाम लिखूंगा, हर टाइम कितने अटेंडेंस आते हैं पता चलेगा। 39 दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट, उसमें से मेरा है मतलब 38 पार्टिसिपेंट है, ठीक है? गॉट इट? अभी तक